ملک و قوم کی خدمت کا عزم، محسن نقوی نئے محاذ پر سرگرم۔ پنجاب کے بعد ایوان بالا میں خدمات کا فیصلہ، محسن نقوی آزاد حیثیت سے سینیٹر کا الیکشن لڑیں گے۔ سابق نگراں وزیر اعلیٰ کو سینیٹر بننے پر وفاق میں اعلیٰ ذمہ داریاں ملیں گی۔ محسن نقوی بطور چیئرمین پی سی بی فرائض سر انجام دیتے رہیں گے۔ محسن نقوی بطور چیئرمین پی سی بی بھی فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ ملک و قوم کی خدمت کا عزم، محسن نقوی نئے محاذ پر سرگرم۔ پنجاب کے بعد ایوان بالا میں خدمات کا فیصلہ، محسن نقوی آزاد حیثیت سے سینیٹر کا الیکشن لڑیں گے۔ سابق نگران وزیر اعلیٰ کو سینیٹر بننے پر وفاق میں اعلیٰ ذمہ داریاں ملیں گی۔ محسن نقوی بطور چیئرمین پی سی بی بھی فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ پاکستان کے 3 بڑے کرکٹ اسٹیڈیم اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ، قذافی اسٹیڈیم، نیشنل اسٹیڈیم اور راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم شامل ہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے 3 روز میں پلان طلب کر لیا ہے۔ قذافی اسٹیڈیم سے اپ گریڈیشن کا آغاز ہوگا، نیسپاک حکام کی محسن نقوی کو بریفنگ۔ پی سی بی قذافی اسٹیڈیم لاہور، نیشنل اسٹیڈیم کراچی اور راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم اپ گریڈ کرے گا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن کا پلان طلب کر لیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے بورڈ حکام کو ہدایت کی ہے کہ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے تینوں اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن مکمل کی جائے۔ محسن نقوی نے 3 روز میں قذافی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا حتمی ڈیزائن پلان طلب کر لیا ہے۔ دوسرے مرحلے میں نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کراچی اور راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا ڈیزائن پلان تیار کر کے کام کا آغاز کیا جائے گا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں نیسپاک کے حکام نے اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن پر بریفنگ دی۔ ڈائریکٹر انفراسٹرکچر پی سی بی، نیسپاک اور متعلقہ حکام بھی اجلاس میں شریک تھے۔ ایل ڈی اے لاہور میں ترقیاتی منصوبے تجویز کرے گا۔ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کو بھی دوبارہ حکومت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ 25 ارب سے پرپوز ہونے والا منصوبہ 1 ارب تک پہنچ چکا۔ گڑی شاہو کریم بلاک سگنل فری کوریڈور منصوبہ بھی تجویز کیا جائے گا۔ ایکسپریس وے کو نئی حکومت کے سامنے فیوچر ویژن کے بہترین منصوبے کے تحت پیش کیا جائے گا۔ 25 ارب کی لاگت سے پرپوز ہونے والا منصوبہ اب 1 ارب کی لاگت پر پہنچ چکا ہے۔ ایل ڈی اے نے گلبرگ سے بابو سابو موٹر وے تک ایکسپریس وے کے لیے اراضی بھی ایکوائر کر رکھی ہے۔ ایل ڈی اے منظور شدہ پروجیکٹس گڑی شاہو اور کریم بلاک سگنل فری کوریڈور کا منصوبہ بھی پیش کرے گا۔ پائن ایونیو پر راؤنڈ اباؤٹس کی ری ماڈلنگ اور ایک مقام پر فلائی اوور تجویز کرنے کا پلان بھی پیش کیا جائے گا۔ آئی ٹی ٹاور اور آئی ٹی ٹیک سٹی کا پروپوزل بھی پیش کیا جائے گا۔ آئندہ چند روز میں کمشنر لاہور انجینئرنگ ونگ کی پریزنٹیشن وزیر اعلیٰ مریم نواز کو پیش کریں گے۔ لاہور کی آئندہ ترقی کا تعین وزیر اعلیٰ پنجاب کے فیصلے کے بعد ہوگا۔ اب آپ کو بتائیں کہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ مافیا نے سرکاری نرخنامہ روک ڈالا۔ کروڑوں منافع کمانے والی کمپنیاں ریلیف دینے سے انکاری ہیں۔ پرائیویٹ کمپنیوں نے گھی، آئل، چینی، سرف، دالوں پر کوئی ریلیف نہیں دیا۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ مافیا نے سرکاری نرخنامہ رون ڈالا، جبکہ کروڑوں منافع کمانے والی کمپنیز ریلیف دینے سے انکاری۔ پرائیویٹ کمپنیز نے گھی، آئل، چینی، سرف، دالوں پر کوئی ریلیف نہیں دیا۔ صوبہ بھر کے مڈل سکولوں میں زیر تعلیم لاکھوں طلباء و طالبات کے لیے اچھی خبر ہے۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ اینڈ کریکولم اتھارٹی نے 6ٹھی سے 8ویں جماعت تک جغرافیہ اور تاریخ کی کتاب اردو میں چھاپنے کی اجازت دے دی ہے۔ سنگل نیشنل کریکولم کے باعث دونوں کتابیں انگریزی زبان میں چھاپی جا رہی تھیں۔ نصاب انگریزی میں ہونے کے باعث بچوں کو تاریخ و جغرافیہ پڑھنے میں مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ آئندہ سال سے مڈل جماعت کے طلبہ دونوں مضامین کا امتحان اردو میں دے سکیں گے۔ کتابیں انگریزی میں ہونے کے باعث طلبہ کا امتحان بھی انگریزی میں لیا جاتا تھا۔ صدر ایپسا شبیر ہاشمی کا کہنا ہے کہ پی سی ٹی بی کی جانب سے نصاب اردو میں چھاپنے کی اجازت دینے کا فیصلہ احسن اقدام ہے۔ واہگہ پریڈ دیکھنے والوں کے لیے اچھی خبر، ہفتہ اور اتوار کو خصوصی اسپیڈو بس شٹل چلانے کا فیصلہ۔ ڈیرہ گجرا سے واہگہ اسٹیشن تک شٹل چلے گی۔ شہری دوپہر 3 سے رات 8 بجے تک مستفید ہو سکیں گے۔ جی بالکل، شہری دوپہر 3 سے رات 8 بجے تک مستفید ہو سکیں گے۔ واہگہ پریڈ دیکھنے والوں کے لیے اچھی خبر ہے، ہفتہ اور اتوار کو خصوصی اسپیڈو بس شٹل چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈیرہ گجرا سے واہگہ اسٹیشن تک شٹل چلے گی۔ شہری دوپہر 3 سے رات 8 بجے تک مستفید ہو سکیں گے۔ لیسکو چیف سمیت اہم اسامیوں پر مستقل تقرری لٹک گئے۔ انتظامی امور متاثر ہونے لگے۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز کا تقرر نہیں کیا جا سکا۔
लेस्को चीफ की 1 साल गुजरने के बावजूद मुस्तकिल बुनियादों पर तकर्री नहीं की गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डायरेक्टर ऑपरेशन शाहिद हैदर को चीफ एग्जीक्यूटिव का इजाफी चार्ज देकर 3 लाख रुपए माहाना स्पेशल अलाउंस भी दे दिया। स्पेशल अलाउंस देने पर ऑडिट रिपोर्ट ने एतराज भी उठा रखा है। लेस्को में चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरी की आसामी पर भी तकर्री नहीं हो सकी। लेस्को की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बुशरा इमरान को कंपनी सेक्रेटरी का इजाफी चार्ज दिया गया है। डायरेक्टर जनरल इंप्लीमेंटेशन की नशिस्त पर भी मुस्तकिल तकर्री अमल में नहीं लाई गई। डीजी इंप्लीमेंटेशन की आसामी पर जूनियर ऑफिसर तारिक उस्मान को लगा दिया गया। डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स की अहम तरीन आसामी पर नोमान गफूर को करंट चार्ज की बुनियाद पर डायरेक्टर HR लगा रखा है। लेस्को में डायरेक्टर कमर्शियल की आसामी पर भी मुस्तकिल तायिनाती नहीं की गई, जबकि लेस्को के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मेजर रिटायर्ड औरंगजेब को रीजनल ट्रेनिंग सेंटर लगाया गया है। कंपनी में जाती पसंद की बुनियाद पर राय मसूद खरल को PRO का इजाफी चार्ज दिया गया है, जिसके बाद राय मसूद मजमूई तौर पर 3 ओहदों पर फाइज हो गए हैं। लेस्को के मैनेजर सिक्योरिटी ने भी ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वफाकी हुकूमत का कैदियों की सजाओं में रिलीफ। वज़ीर-ए-आज़म की तजवीज़ पर कैदियों की सजाओं में 2 साल तक मुआफ़ी का ऐलान किया गया है, जबकि सदर पाकिस्तान ने कैदियों की सजा में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़िना, दहशतगर्दी, डकैती, अगवा और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस कैदी मुस्तफ़ीद नहीं होंगे। वफाकी हुकूमत का कैदियों की सजाओं में रिलीफ का ये फैसला है। वज़ीर-ए-आज़म की तजवीज़ पर कैदियों की सजाओं में 2 साल तक मुआफ़ी का ऐलान किया गया है। सदर पाकिस्तान ने कैदियों की सजा में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ज़िना, दहशतगर्दी, डकैती, अगवा और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस कैदी मुस्तफ़ीद नहीं होंगे। सेक्रेटरी पंजाब मियां शकील अहमद का तबादला कर दिया गया। मियां शकील अहमद को सेक्रेटरी बल्दियात तैनात कर दिया गया। नूरुल अमीन मेंगल को सेक्रेटरी महकमा दाखिला तैनात कर दिया गया है। राशिद कमाल रहमान को महकमा माहौलियात से OST बना दिया गया है, जबकि जावेद अख्तर महमूद को सेक्रेटरी औकाफ तैनात कर दिया गया। नासिर इकबाल मलिक चीफ इकोनॉमिस्ट महकमा PND तैनात कर दिया गया। अली बहादुर काजी को सेक्रेटरी इंसानी हकूक तैनात कर दिया गया है। डॉक्टर शुएब अकबर को सेक्रेटरी MTDD तैनात कर दिया गया। डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी को DG औकाफ तैनात कर दिया गया। इकबाल हुसैन को सेक्रेटरी सोशल वर्कर तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद उस्मान CEO पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तैनात कर दिया गया, जबकि मुअज़्ज़म इकबाल सिप्रा को सेक्रेटरी खुराक तैनात कर दिया गया है। ज़हूर हुसैन को सेक्रेटरी आर्काइव तैनात कर दिया गया। मुजफ्फर खान को सेक्रेटरी स्पोर्ट्स तैनात कर दिया गया है। डॉक्टर आसिफ तुफैल को सेक्रेटरी PND तैनात कर दिया गया। परवेज इकबाल को DG स्पोर्ट्स तैनात कर दिया गया है। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन खालिद सलीम को OST बना दिया गया, जबकि सेक्रेटरी स्कूल्स मोहम्मद एहसन वहीद को OST बना दिया गया है। डॉक्टर एहतशाम अनवर कमिश्नर बहावलपुर से सेक्रेटरी स्कूल्स तैनात कर दिए गए हैं। नादिर चट्ठा को कमिश्नर बहावलपुर तैनात कर दिया गया, जबकि डॉक्टर फरुख नावीद को सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तैनात कर दिया गया है। मुदस्सर रियाज मलिक को DG वाइल्ड लाइफ तैनात कर दिया गया। दानिश अफजाल सेक्रेटरी अमल दरामद वज़ीर आला सेक्रेटरी तैनात कर दिए गए हैं। आमना मुनीर को DG सोशल वेलफेयर तैनात कर दिया गया है। शाहिदा फरुख नावीद को DG स्पेशल एजुकेशन तैनात कर दिया गया है। मुनीबुर रहमान स्पेशल सेक्रेटरी महकमा हायर एजुकेशन तैनात कर दिए गए हैं। IG पंजाब ने लाहौर के 3 SPs के तकर्रुर तबादले कर दिए। अहमद जुनैद चीमा को SP ऑपरेशंस मॉडल टाउन तैनात कर दिया गया। इखलाकुल्लाह तारड़ को SP ऑपरेशंस इकबाल टाउन तैनात कर दिया गया। अब्दुल वहाब को SP सिक्योरिटी लाहौर तैनात कर दिया गया है। IG पंजाब ने तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं। IG पंजाब ने लाहौर के 3 SPs के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। अहमद जुनैद चीमा को SP ऑपरेशंस मॉडल टाउन तैनात कर दिया गया है। इखलाकुल्लाह तारड़ को SP ऑपरेशंस इकबाल टाउन तैनात कर दिया गया। अब्दुल वहाब को SP सिक्योरिटी लाहौर तैनात कर दिया गया। IG पंजाब ने तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सानिहा 9 मई समेत दीगर मुकदमात की समाअत करने वाला जज तब्दील। जज इंसदादी दहशतगर्दी कोर्ट नंबर 1 लाहौर को OST बना दिया गया। सेशन जज मोहम्मद नवीद इकबाल को रहीम यार खान में तैनाती पर रिपोर्ट करने की हिदायत की। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने मंजूरी के बाद पहला तबादला किया।
9 मई समेत इंसदाद दहशत गर्दी के दीगर मुकदमात की समाअत करने वाले जज नवीद इकबाल को तब्दील कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की मंजूरी के बाद जज नवीद इकबाल को OST बना दिया गया। सेशन जज नवीद इकबाल को रहीम यार खान में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी तैनात करते हुए उन्हें वहाँ रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। नवीद इकबाल को 11 मार्च तक नई तैनाती पर रिपोर्ट करने का कहा गया है। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आसिफ जरदारी हमारे उम्मीदवार हैं, अपने इत्तेहादी को ही वोट देंगे। मरियम नवाज का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने कहा, अवाम चाहते हैं नफरत और तकसीम का माहौल खात्म हो, हम मिलकर आगे बढ़ेंगे, मसाइल का खात्मा करेंगे। पाकिस्तान के 14वें सदर मुमलिकत का इंतखाब कल होगा। पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद के महमूद खान अचकजई सदारत के उम्मीदवार हैं। पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर 24 नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। हलफ उठाने के दौरान ऐवान में अपोजिशन अरकान की शदीद हंगामा आई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राना आफ्ताब अहमद का कहना था कि मखसूस नशिस्तों के मामला अदालत में ज़ेर समाअत है। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान हल्फ नहीं उठा सकते हैं। असम्बली का हंगामा खेज इजलास। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की जेर सदारत 1 घंटा 29 मिनट ताखीर से शुरू हुआ। इजलास के आगाज में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी पर अपोजिशन अरकान ने शदीद एहतजाज किया और स्पीकर डाइस का घेराव करके शोर शराबा किया। पंजाब असम्बली में खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों पर 24 नौ मुंतखब हुकूमती इत्तेहाद अरकान ने हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाने के दौरान अपोजिशन अरकान शोर शराबा करते रहे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राना आफ्ताब अहमद खान का कहना था कि मखसूस नशिस्तों का मामला अदालत में जेर समाअत है, फैसला आने तक अरकान हल्फ नहीं उठा सकते। अदालत में भी आज जस्टिस आबद अजीज शेख साहब के पास ये केस लगा हुआ है और अर्जेंट लगा हुआ है। इन्होंने इसलिए कि फटाफट हल्फ दिलवा के इनको कल वोट दिलवाया जाए, जिसकी हम भरपूर मजम्मत भी करते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का काम इंटरप्रिटेशन नहीं है, उसका काम है कि ये जो हमारे आइन के मुताबिक चीज़ है उसको किया जाए। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अपोजिशन की जानिब से अरकान के हल्फ को रोकने के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए कहा कि आइन के मुताबिक और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन पर मखसूस अरकान से हल्फ लिया। ऐवान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद अली हैदर गिलानी की जानिब से जुल्फकार अली भुट्टो को सरकारी शहीद और कौमी हीरो करार देने की करारदाद पेश की गई, जो पंजाब असम्बली ने अक्सरियत राय से मंजूर कर ली। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ हसन अली, सिटी 42, लाहौर। अब आपको बताएं कि वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर निगहबान रमज़ान पैकेज गोदाम में तैयार होने वाले राशन बैग की क्वालिटी और मिकदार को चेक किया है। एडिशनल डीजी फूड अथॉरिटी भी हमरा थे। वज़ीर खुराक ने कहा, जो मिल्स अच्छी क्वालिटी नहीं दे रही उसे सील कर दिया जाएगा। हमारे फूड एम्पस यहाँ पे तैयार होने हैं, तो ये तो मैं लाहौर डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो ये लाहौर फूड डिपार्टमेंट का गोदाम है। यहाँ पे 40,000 डेली की कैपेसिटी है कि उसको ये पैक कर सकते हैं। उसके लिए हमने 3 टीयर्स में इसकी वो चेक रखा है। सबसे पहले जो पंजाब फूड अथॉरिटी है वो इसकी क्वालिटी को इंश्योर करती है और साथ ही साथ इसकी जो उसको वेट को मेजर करती है। उसके बाद स्पेशल ब्रांच एक टीयर है, वो इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स जो कमिश्नर लाहौर हैं वो यहाँ पे जो लोकल बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल चीज़ों को देख रहे हैं। अब इसके बाद इसकी किसी भी रैंडम किसी भी बैग को उठा के हमारी जो लैब्स हैं उनमें जाके इसकी क्वालिटी को चेक। अपेरेंटली तो मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है और इसका वेट भी 18 kg का ये बैग है, जिसमें आटा है, जिसमें चावल हैं, जिसमें घी है, बेसन है और चीनी है। ये जो चीज़ें हैं इसको अपेरेंटली तो मैंने देखा उनकी क्वालिटी मुझे बहुत ठीक लगती है। जो आटा है वो ऑब्वियसली मार्केट से और फूड डिपार्टमेंट के जो उनके रिकमेंडी जो लोग हैं, डीलर्स हैं, उनसे लिया गया है। क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। शुगर जो मार्केट में जो अवेलेबल है वो ली गई है। जो घी है वो जो बेस्ट जो ब्रांड्स जो डिस्ट्रिक्ट वाइज चलते हैं 1-2 नंबर की जो है उनको बिल्कुल रिकमेंड किया गया है। अब इसके बाद अब हम जाके लैब में जो हमने रैंडम बैग्स उठाए हैं उनकी चेकिंग देखते हैं कि उसमें क्वालिटी में। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक, वज़ीर मवासलात मलिक सुहेब अहमद के ज़ेर सदारत इजलास लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर केयर अस्पताल के मास्टर प्लान का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक और वज़ीर महकमा मवासलात मलिक सुहेब अहमद की ज़ेर सदारत IDEP हेड ऑफिस में इजलास हुआ। सेक्रेटरी सेहत अली जान, स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशंस राजा मंसूर अहमद, CEO IDEP सुहेल अशरफ समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। सेक्रेटरी सेहत CEO IDEP ने सूबाई वज़रा को ब्रीफिंग दी। ख्वाजा सलमान रफ़ीक
ने कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर में कैंसर के मरीजों को एक ही छत तले इलाज की बेहतर सहूलियात फराहम हो सकेंगी। सूबाई वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर ने अहदे का चार्ज संभाल लिया। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स राधा जहांगीर और डीजी स्पोर्ट्स डॉक्टर आसिफ तुफैल ने महकमे के हवाले से ब्रीफिंग दी। फैसल अयूब खोखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आलमी सतह पर मुल्क कौम का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी हमारे हीरोज़ हैं। मैं अभी बात कर चुका हूँ, मैंने अपनी टीम को बोला है कि आई वुड बी इन्वॉल्विंग मैनी मिनिस्टर्स विद माई, कि मैंने एजुकेशन को साथ इंगेज करूँगा। मैं ये पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि जी एजुकेशन मिनिस्ट्री इज़ ऑल्सो स्टेक होल्डर ऑफ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। कैसे मैंने इंशाल्लाह ताला इसके अंदर रिफॉर्म्स लेके आएंगे कि जो बंदा एकेडमिकली नंबर लेना चाहता है कि साथ में स्पोर्ट्स के लिए भी कोई ना कोई उसको इंगेजमेंट और इंटरेक्शन हो कि स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसके लिए भी मार्किंग होनी चाहिए। तो इसके ऊपर भी हम सोच रहे हैं। देखें कि स्कूल जो गवर्नमेंट बनते हैं ना, बिल्डिंग्स अच्छी बनना इट्स नॉट इनफ, साथ साथ हर स्कूल के अंदर ना स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। तो जब देखें कि हम कॉम्प्लेक्स बना दें काफ़ी नहीं है, स्कूल में बंदा सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, 8 घंटे लगाता है। उस 8 घंटे के दरमियान में स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ स्कूल्स के अंदर होनी चाहिए और सरकारी स्कूलों के अंदर होनी चाहिए। फैसल खोखर का बेटा नहीं, बहुत अच्छे स्कूल में होगा, उसके अंदर स्विमिंग पूल भी होगा, सब कुछ होगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि पंजाब की मिनिस्ट्री को एजुकेशन को मैं इंगेज करूँ, उनको रिक्वेस्ट करूँ कि जो अब नए स्कूल बना रहे हैं उसके अंदर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी। कमिश्नर लाहौर का वेयर हाउस का दौरा रमज़ान निगहबान पैकेज की तरसील का जायजा लिया। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने रमज़ान निगहबान पैकेज के लिए कायम वेयर हाउस सरबंसपुरा का दौरा किया। सामान की दस्तयाबी तरसील के लिए वसा कदम मैकेनिज्म का जायजा लिया। मोहम्मद अली रंधावा ने पैकेज में मौजूद अशिया की क्वालिटी की मुतफारिक सैम्पलिंग कराई, रिकॉर्ड भी चेक किया, मशीन पर अशिया का वसन कराया। इस मौके पर DC लाहौर राफिया हैदर और दीगर अफसरान मौजूद थे। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान की तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस में मुनक़िद हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ख़ुसूसी शिरकत की। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस आबिद अजीज़ शेख, जस्टिस सदाकत अली खान, जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने शिरकत की। जस्टिस फैसल जमान खान, जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस अशरफ जावेद घुराल, जस्टिस अली ज़िया बाजवा, जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद, जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ीक समेत दीगर जजेस शरीक हुए। सूबाई वज़रा, डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा समेत लॉ अफसरान, कोर कमांडर लाहौर, IG पंजाब, जुडिशल अफसरान और लाहौर हाई कोर्ट के अफसरान समेत फाजिल चीफ जस्टिस के अजीज़ो अकारा भी मौजूद थे। हल्फ बर्दारी के बाद लाहौर हाई कोर्ट पहुँचने पर चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से इचरा वाक़या के सिविलियन हीरोज़ की मुलाकात। IG पंजाब का कहना है कि मुश्तइल हजूम से खातून को महफूज रखते हुए पनाह देना बहुत बहादुरी का काम था। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से इचरा वाक़या के सिविलियन हीरोज़ ने मुलाकात की। खातून की जान बचाने में नुमायां किरदार अदा करने वाले शहरी जॉनसन तारिक, पतरस और शहजाद अलीम ने मुलाकात की। जॉनसन तारिक ने खातून को अपने रेस्टोरेंट में पनाह दी थी। IG पंजाब ने कहा, मुश्तइल हजूम से खातून को महफूज रखते हुए पनाह देना बहुत बहादुरी का काम था। खातून को मुश्तइल हजूम से पनाह देकर जॉनसन तारिक ने सर फखर से बुलंद कर दिया है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने जॉनसन तारिक को पुलिस मिसाक सेंटर का एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। मिसाक सेंटर के प्लेटफॉर्म से मुनाक़दा बैनुल मज़ाहिब हमांगी के प्रोग्राम्स में जॉनसन तारिक बतौर एम्बेसडर शिरकत करेंगे। IG पंजाब ने वाक़े के दौरान दानिशमंदी का मुजाहरा करने पर शहजाद अलीम और पतरस की काविशों को भी सराहा। अब आपको बताएं कि CCPO बिलाल सदीक का म्याना की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इकबाल टाउन और सिटी डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। CCPO ने सुपरवाइजरी अफसरान को अपने इलाकों में खुली कचहरियाँ लगाने की हिदायत जारी करते हुए कहा कि खुली कचहरियों में आवाम को मौके पर रिलीफ फराहम किया जाए। हवाई फायरिंग की इतला पर DSP खुद क्राइम सीन पर पहुंचे, तहकीकात और कार्रवाई यकीनी बनाएं। हवाई फायरिंग करने वाले इलाकों में कॉमिंग ऑपरेशन भी करवाए जाएं। बिलाल सदीक कमियाना ने शहरियों तक रमज़ान पैकेज की महफूज तरसील को यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की। इजलास में DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर, SSP एडमिन आतिफ नज़ीर, SSP ऑपरेशंस सैयद अली रज़ा और दीगर भी मौजूद थे।